Okay. So yesterday we covered till logical operator and comparison operator. In the logical operators, let me revise this once. In the logical operators, we have and or. And is basically used when we have one or two or more conditions to be satisfied. Means we whenever we are giving the condition, both the conditions should be true. Okay. Did we write it or not? Yes, we wrote it here. Output. One of the if one of the condition is false, then false. It must have both the conditions true, then it will return true. And if one of the condition is true, then it will return true. That is the whole outcome of this or and. Then we have we completed the comparison operators. So in the comparison operators we covered equal to, less than equal to, greater than equal to, and uh, not equal to. These are the 5 6 operators we covered. Equal to, less than, greater than, less than equal to, then greater than equal to, greater than, greater than equal to, and again not equal to, not equal to, not equal to, yes, not equal to. Then what we covered in the comparison operators. So let's cover the remaining. So we will start with the there are some special operators. Arithmetic operators are pretty simple, so we will wrap it just like we covered this logical operator yesterday first. So this is bit tricky and bit interesting, but these are straightforward, right? These are straightforward. So simple, less than or greater than. Similarly, we have arithmetic operators like addition, then subtraction, addition, then subtraction. इसको करता हूँ टेक्स्ट, प्लॉट हो गया इसका, नंबर नॉट नंबर, टेक्स्ट. अब क्यों आएगा एडिशन, एडिशन ओके, एडिशन में प्लस, then subtraction, subtraction, then subtraction we have these division, then multiplication, then we have modulus. Anyone knows what is modulus? Okay, so I don't think so. Then we have division, yeah, division here, then multiplication, that is used, we use star for multiplication. Modulus, modulus is like percentile, modulus is percentile. Where is percentile? Function f5. Okay, these are the arithmetic operators. We will cover them at the end because we have some interesting operators to cover. Okay, so let me call them as a special operators. To x, to b. Okay, in the special operators, suppose we have like operator. So this is very interesting, guys. So can someone quickly recall why we used grep in the Linux? If you can recall why grep is used in the Linux, we covered that, right? Grep command. Can someone recall? I think Abhi, why grep is used? Filter purpose. Okay. You can go on mute. Thank you. Okay, so basically, suppose in the grep command we use, suppose we have particular file, and in the file we want to find particular pattern, right? Suppose in this we have whole list of file, and in one particular file we want to debug that file, and we want to find the where exactly the error came. So we will do that grep and we will find that
Let me open the Ubuntu so you can. So this is very important command, guys. I told you, know, that's great command is very important. Okay, similar functionality we have in the SQL as well. So in order to find the particular pattern, we use the uh, like operator here. Okay, so yesterday what we covered, these are like these are the yesterday's topics. So we will cover the like operator. Okay, and let's comment this out. Like operator, name itself suggests that it is something like like means like similar, right? Okay, so let's start with the like operator, and then suppose in the grep, where it was, is it opening Ubuntu? It's taking time. Yeah, it is open. Ubuntu. LL stop files uttresh.txt, cat uttresh.txt. So, but if you want to find this hello or maybe data wala, so how will you find this in this file, whole file, right? So grep, yeah, I took this command grep, and then let's make it case insensitive. So, and I will find data wala, grep hyphen I data wala, or which file, uttresh.txt, uttresh.txt. Okay, so here it, out of this whole file, it written this one. So the similar functionality we should have in the SQL also, right? So that is the we will cover in the like operator. So it is used to find, it is used to like operator, it is used to find the particular pattern. That's what similarly we discuss in the Linux as well, grep command. Let me remind this as well, like similar functionality functionality as similar functionality as grep in Linux. Okay, so just remind this, because this is very used command, guys. So that is, so we will find this utility in the SQL as well. So let's start. Okay, so how to use this command? So suppose we have customer name here, right? And we want to, suppose you have lots of customers, and out of that you want to find some customers with whose name starts with maybe Andrew or maybe Rog. There are like, you want to find the someone whose name starts with the Roger. Okay, in the Roger, then we will start with like select just focus on the operators, guys. Okay, so let's start from orders data where, so we are filtering data. Okay, where customer underscore name. Now yesterday we use which one, equal to operator, right? Here we used equal to operator. Yes, yeah, here you can see, here we use equal to operator. But if you want, if you try to find this particular name, okay, your customer name equal to, if you try to find this like equal to using equal to operator, uh, we will find it as like Ted. Okay, do you think what it will return? It is not returning anything. But you wanted to have that, right? Someone, the name starting with some parameter, or there are like departments, there are like multiple filters, multiple purposes this one is used. But mostly when we want to find the date, that I will cover in the next topic. So if you want to, there are like huge amount of columns in particular table. Okay, or into the whole database, you want to find the particular column name or table name, how will you find? So if you directly give the equal to, then it is not returning. But you want to find something like matching, something you want to find something like which might match to this.
there comes the like operator. Okay, so which is like, and in the like we have like multiple conditions here. If I put in this way, so in like operator is used particularly with the uh, regular expressions. We call it as regular expressions. Regular expressions means like just understand like kind of pattern. Regular expression is kind of pattern, particular pattern. Okay, so here if you now I'm querying again. Shall I start from the orders data where customer name like Ted? Okay, I'm not getting anything. Okay, I just simply move this, and here now we go. Okay, we have got something Ted. I'm not writing fully name. Okay, and let me remove this one again. So I will cover it how it is done, but just understand the flow, guys. Okay, I'm using the like operator. Okay, and in the like operator we are using this is kind of percentile symbol. So why this percentile symbol is used? Okay, let's get back. So I am trying to find. So there are multiple conditions. Okay, in the like operator there are multiple conditions. So if you want to particular pattern, starting starting with some pattern. Okay, starting with some pattern, like you want to find the name which are starting with, or maybe let me query again all the data. Okay, you want to find those name which are like starting with the ROG. Okay, we don't have multiple names, we have only one name, but still suppose you want to find the all the names starting with the ROG or AND. Okay, so how will you do? So in order to find that, we have multiple use cases of this. So if you want to find the starting with particular string, then you have to put this percentile after that string. Okay, what I meant to say, if you can see here, if I query this. Okay, if I query this, okay, it's not returning anything. It's not returning anything like, but we need to tell him it is the name, the customer name should start with the Ted. Okay, if you use this Ted and percentile after the string, then it will assume it as like a, it will start with, it is starting with the Ted. Okay, and if I put in the this way, suppose I'm removing this end 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 percentile and I'm using this percentile here. Okay, now what will happen? So it is, this one is like I am searching the name which is ending with Ted. Okay, now let me query again. Now I will take one more example of this. Bit interesting, bit complex. Interesting things are always complex. Okay, so I want to find a customer name which are ending with, suppose uh, are there multiple names? Okay, ALL, Houston, or Troy, Office Supplies. We don't have that. EAST, West. Okay, okay. So here is, we have one condition. So East condition, West condition. Okay. Suppose we want to find the uh, city, sorry, region ending with the ST. Okay, region ending with the ST. Okay, here I will write it as a region like ending with. So if this percentile symbol is first, then it is assuming that it should end with that. Okay, it should end with that string. So we are getting this EAST WST. So if this percentile symbol is in the beginning, so it is assuming that that should end with the that's that particular pattern or particular string. Okay, so first condition, if we use percentile in the beginning, it is assuming it should be end with that, and if you uh, use a percentile at the end, it is assumed that it should start with that. Okay, understood, guys? Bit confusing, but
बट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल. सो अगर तुमको ये वाला फाइंड करना है कि परसेंटाइल मतलब एस टी से एंड करना है तो पहले मेरे को, और कोई भी पैटर्न ले लो तुम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना जितना पैटर्न चाहिए आपको उतना ले लो. और अगर तुमको स्टार्ट में लेना है उसको पैटर्न को, तो उसके बाद में रखो इसको, तो दैट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके. और अगर तुमको ये वाला लेना है कि भाई कहीं पे भी ये आना चाहिए मुझे, कहीं पे भी मतलब शुरू में आए या एंड में आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो वो वाला कैसे कवर होगा, तो उसके लिए आते हैं, दोनों साइड पे लेते हैं उसको, दोनों साइड पे परसेंटाइल लेते हैं. ओके. So let's start from orders where, so let's start from orders where, so we have, if you have any condition, Butterfield, okay, N ओके. ये वाला लेते हैं, जहाँ पे AN आता हो वैसे कस्टमर नेम लेते हैं. AN कहीं पे भी आ जाए चलेगा मुझे, तो वेयर कस्टमर नेम लाइक AN. और AN कहाँ पे आए, ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि ये शुरू में आए, ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि लास्ट में आए. तो ये हम बोलते हैं कि भाई तू कहीं पे भी आ जा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला दोनों साइड परसेंटाइल लगा देते हैं. ओके. ये वाला बनता है, आ गया इधर एंड्रू, यहाँ पे AN आया है तो इसकी वजह से आया है, यहाँ पे भी AN आया है इसकी वजह से आया है ये. ओके. सो इसके तीन तीन केसेस बनते हैं, स्टार्टिंग विद द पैटर्न, देन so single inverted comma, then pattern and then percentile. Okay. And again inverted comma close, starting with some pattern. Okay. Now ending with some pattern, we have to just shift this percentile to here, remove this from here, and again anywhere some pattern, anywhere in that particular column, anywhere some pattern, then we should take it as on the both side of this. Okay. So this is the like operator, guys. Got it? So तो तीन ही कंडीशन है इसमें, या तो स्टार्ट से हो जाए, या तो फिर एंड में हो जाए, या फिर बीच में आ जाए, तो उस हिसाब से इसको ले लेते हैं अपन. तो इसके तीन केसेस बनते हैं, या तो शुरू में, या तो एंड में, या तो फिर कहीं पे भी, मतलब इन एनीवेयर दिस पर्टिकुलर पैटर्न मैचेस, रिटर्न दैट आउटकम्स. ओके. सो दिस इज द लाइक ऑपरेटर, एंड लाइक ऑपरेटर इज वेरी मच यूज, बिकॉज इसका एक अनदर यूज केस बनता है, select star from information. एक नया ये फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है इसका, एक इंफॉर्मेशन स्कीमा. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देता है, डॉट कॉलम्स. ओके. वेयर तुमको ये फाइंड करना है कि जहाँ पे भी नहीं क्या, पूरे डेटाबेस में, उत्तरेश्वर वाले डेटाबेस में मुझे जहाँ पे भी ऑर्डर वाला कॉलम आ जाए ना, जहाँ कहीं पे भी ऑर्डर वाला, मतलब वेयर कॉलम नेम, एक मिनट में सिंटैक्स लिख के ही दिखा दो, कॉलम नेम लाइक और कहीं पे भी मेरे को ऑर्डर आ जाए तो सारे कॉलम लेके आओ. ओके. सो सेल स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स, हम ये कर रहे हैं कि सारे कॉलम्स लेके आओ जहाँ पे कॉलम नेम लाइक ऑर्डर वाला, और उसका कॉलम नहीं का जिसके सारे, जहाँ पे कॉलम नेम ऑर्डर से, मतलब जिस सारे कॉलम में जहाँ पे ऑर्डर आता होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आ रहा है, इसमें भी ऑर्डर डेट आ रहा है, शिप डेट में ऑर्डर नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं इसको पूरा. दिस क्वेरी विल रन ऑन होल डेटाबेस. ओके. सेल स्टार. ओके. तो यहाँ पे दिखा रहा है पूरा कि टेबल कैटलॉग, ये मतलब ये डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल स्कीमा DBO ऑब्जेक्ट है,
और ऑर्डर्स डेटा में टेबल नेम में यहाँ पे अगर देख लोगे ना तुम कॉलम नेम कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे हमने पूरे डेटाबेस, ये वाली क्वेरी पूरे डेटाबेस लेवल पे रन हो जाती है। अगर तुमको ऑन टॉप ऑफ दैट अगर और कहीं फिल्टर लगाना है तो यू कैन पुट द filter condition again. So yesterday we used and condition, right, where column name like order percentile, अगर तुमको orders data में से ही चाहिए बस, तो again we will put it like table name like table underscore name like, और सीधा नाम पुट कर देते टेबल नेम इक्वल टू। तो ये तो एकदम बढ़िया यूज केस हो गया कि सारा इसमें कवर हो गया। ऑर्डर स्टेट नहीं, ऑर्डर्स डेटा टेबल नेम चाहिए हमें। ओके, यहाँ पे तो हमने ये वाला कंडीशन था कि पहले वाले कंडीशन में बस यही था कि जहाँ पे ऑर्डर कॉलम का नाम ऑर्डर आ जाए सारे डेटा लेके आओ, मतलब इसमें पूरा लेके आया कि फोकस अभी इस पे करो, इस पे स्टार में सारे एट्रीब्यूट्स दिखा देता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं इसमें, हमको फोकस इस पे करना है कि कॉलम नेम कौन सा है, ऑर्डर वाला, जहाँ कहीं पे भी ऑर्डर आ जाए, इसमें कहीं पे देख लोगे ना तुम, कहीं पे भी आया ऑर्डर, ये शुरू में आया है, यहाँ पे अंडरस्कोर पे भी आया, ऑर्डर आईडी आया, कहीं भी ऑर्डर वाला पैटर्न लेके आएगा तो हम बता देंगे कि भाई आया। अभी कल वाला कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे एंड लिख रहा है ये, और अभी अगर एंड लिख रहा हूँ ना मैं, तो ऑर्डर्स डेटा वैसे बस ऑर्डर ये वाले दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, और जहाँ पे ऑर्डर परसेंटाइल आ जाए और टेबल नेम आना चाहिए ऑर्डर्स डेटा, तो बाकी वाले हट जाएंगे। ओके ओके, बाकी वाले तो हट गए क्योंकि हमने यहाँ पे एक और क्वेरी डाल दी थी कि एंड कंडीशन डाल दी थी कि बस मुझे ये वाले चाहिए कि जहाँ पे ऑर्डर टेबल नेम यही हो। ओके, सो दिस वन इज वेरी यूजफुल गाइज, ये इंफॉर्मेशन स्कीमा वाला। यहाँ पे अगर स्टार में देखोगे ना तो क्या क्या आता है, स्टार अगर कभी आपको देखना है कि ये इस स्टार में कौन कौन से कॉलम है, मतलब कौन से भी टेबल हो उसमें अगर कौन से कॉलम है, क्वेरी भी नहीं करनी है, बस देखना है तुमको, तो जस्ट होवर ऑन दिस। ओके, just hover on this, like it will show like table catalog, table schema, table name, column name, ordinal position, column default, is nullable, data type, yes we covered this, right, data types. Okay, then character maximum length, which we covered like char max 10, then numeric precision we covered like tiny int small int, then सारे डेट टाइम वाला प्रिसीजन क्या चाहिए, ये वाला सारा हमने पहले कवर कर दिया है। ओके, दे देख लो, ये वैर कैर ये सिस्टम नेम है, ये वाले नहीं, लेकिन जो मतलब अभी तक कवर जितना हुआ है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो दिस ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है इसका, इंफॉर्मेशन स्कीमा। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स, यहाँ पे अगर तुम कॉलम की जगह यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी रहते, डॉट टेबल्स वेयर कॉलम नेम लाइक ऑर्डर्स, ये वाला कर लोगे, वेयर सेलेक्ट स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर कॉलम नेम लाइक, या फिर ये कॉलम नेम को अपन रिवर्स कर देंगे टेबल अंडरस्कोर नेम लाइक ऑर्डर्स। जितने भी सारे टेबल हो ना, हमें यहाँ पे सारे टेबल नेम लेके आएगा। यहाँ पे क्या रखा है, पहले कॉलम्स थे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेबल्स वेयर टेबल नेम, और टेबल नेम जहाँ पे टेबल के नाम में ऑर्डर आता हो। ओके, यहाँ पे यही लेके आए हैं कि ऑर्डर्स डेटा, ऑर्डर्स 1, ऑर्डर्स 2, ये 3 टेबल है जिनका नाम और जिनके नाम में ऑर्डर आता है, कहीं पे भी शुरू में या एंड में कहीं पे भी आता है, तो दिस इज परसेंटाइल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। वाई व्हाट हैपन्स, सपोज तुम कभी डेटा ट्रैक कर रहे हो, बैक ट्रैक कर रहे हो, कि सपोज तुम्हारा 2-4 टेबल से डेटा मिलके तीसरे टेबल में जा रहा है, दूसरे तीसरे टेबल में जा रहा है, और दूसरे टेबल में जा रहा है, और आपको ट्रैक करना है कि कौन से टेबल से कहाँ से डेटा आ रहा है,
कौन सा कॉलम कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम डायरेक्टली हम क्वेरी करके देख लेंगे कि ये वाला कॉलम कौन से टेबल में है, ये वाला टेबल कौन से डेटाबेस में है। तो information schema is very important utility where we can on top of that we have multiple options. Information schema dot we have column, then constraints, uh, column name, table name. There are multiple options, but we use column name, table name. Okay, so that is the one of the use of this like operator, guys. So this is very interesting. जब तुम काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाई दिस इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसके इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज कुछ भी फाइंड कर सकते हो ना तुम इससे। ओके, सो दैट इज द होल पर्पज ऑफ दिस लाइक ऑपरेटर। एंड ओके, तो ये वाला हमने कल कवर कर दिया था कि जहाँ पे मतलब नहीं क्या एग्जैक्टली एक ही आ जाए, मतलब इक्वल टू कंडीशन आ जाए, बट तुमको चाहिए कि दो चार कंडीशन आ जाए। दो चार कंडीशन मतलब तुम्हारे, अगर तुम्हें ये वाला डेटा क्वेरी करोगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर तुमको ये भी ये सर्च करना है कि जहाँ पे नहीं क्या ये आता हो क्वांटिटी वन, और जहाँ पे वन भी आता हो और थ्री भी आता हो। अगर तुम यहाँ पे आगे अगर ये सर्च कर लेते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डेटा वेयर क्वांटिटी, ये वाला अभी अब आते हैं इन, ये दो अनदर ऑपरेटर है इन एंड नॉट इन। ओके, इन एंड नॉट इन, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला कंडीशन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर वेयर क्वांटिटी 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 इक्वल टू थ्री, सपोज वन लेते हैं। ओके, जहाँ पे वन हो ये वाला आ जाएगा, दो रोज आ जाएगी इसमें। ओके, यहाँ पे दो रो आ गए, लेकिन तुमको कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें मल्टीपल क्वांटिटी भी सर्च करनी पड़ती है। मल्टीपल क्वांटिटी में जैसे मतलब तुमको लिस्ट ऑफ क्वांटिटी सर्च करनी है। लिस्ट क्या होता है कि लिस्ट इज लाइक काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स। ओके, तो वो बाद में देखते हैं लिस्ट क्या होता है, वो पाइथन में आ जाएगा पूरा लिस्ट और पूरा डेटा टाइप सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुमको दो क्वांटिटी सर्च करनी है कि जैसे मेरे को ये भी चाहिए कि क्वांटिटी वन भी जहाँ आता हो और क्वांटिटी थ्री भी जहाँ आता हो। तो फिर ये आता है कि क्वांटिटी इन, पहले हम यूज कर रहे थे क्वांटिटी इक्वल टू वन। ओके, सो अभी लेते हैं इन ऑपरेटर। इन किस लिए यूज होता है कि इफ यू वांट टू क्वेरी द मल्टीपल वैल्यूज passing through that particular column or list of values passing through that particular column. Okay, so यहाँ पे आ जाएगा इक्वल हटा देंगे उसको लगेगा इन मतलब, और बाद में प्रोवाइड करेंगे उसको सीधी लिस्ट वन और थ्री आ गया। ओके, अब देख लोगे हम यहाँ पे ओनली वन ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, एक ही ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, लेकिन अभी वी हैव फ्रीडम ऑफ पासिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक भी पास कर सकते हैं और मोर देन वन भी पास कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कितने पास करने हैं। हम तो कभी कभी सारे शिपमेंट आईडी डाल देते हैं, 1000 ऑफ शिपमेंट आईडी डाल देते हैं, तो उसका डेटा भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये फंक्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा मतलब नहीं क्या रिक्वायर्ड डेटा ही उससे कैन कर देते हैं। यहाँ पे आगे जाओगे ना तो सब क्वेरी का भी कंसेप्ट आ जाता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ सब क्वेरी, यहाँ से क्वेरी में क्वेरी होती है। अभी तो हम एक ही क्वेरी देख रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई लोग प्रैक्टिस करो। अभी तो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरी है, बाद में तो ये आता है कि ये क्वेरी का अंदर एक क्वेरी, ये क्वेरी का अंदर एक मैं क्वेरी डालूंगा, और बाद उसके बाद तो आता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, उसमें तो दो दो तीन क्वेरी एक के अंदर एक जाती है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, बट लेकिन ये है कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन दिस नाउ। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डेटा वेयर क्वांटिटी इन वन और थ्री, और देख लेते दोनों को एग्जीक्यूट कर देते। ओके, यहाँ पे एक ही आ रहा था जहाँ पे क्वांटिटी वन हो,
लेकिन यहाँ पे देख लो व्हाट डज इट हैव क्वांटिटी इन क्या यूज कर रहा है कि इन बोल रहा है कि आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल allow you to get list of values passing through particular column. ओके सो इन एंड नॉट इन, जैसे अभी ये इन तो हो गया है, यहाँ पे इन पे क्या होता है कि इट विल अलाउ यू टू पास मल्टीपल वैल्यूज, और जहाँ पे मैचिंग हो वहाँ पे आ जाता है। ओके अगर अभी कर लेते हैं नॉट इन, जैसे इन एन है वहाँ पे नॉट इन है। So let's start from our orders data where quantity not in, जहाँ पे नॉट इन कर लगे, नॉट इन 1 and 3, जहाँ पे वन और 3 ना हो ऐसे लेके आओ डेटा। तो हम रन करते हैं इसको। ओके इसको अगर रन करते हैं तो बोल रहा है कि ऐसे तो कोई डेटा नहीं जहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी 1 और 3 नहीं हो। ओके दैट्स द सिंपल यूज केस ऑफ नॉट इन। ओके और इन, here we go in, understood? अंडरस्टूड गाइस। इन एंड नॉट इन का यूज क्या है कि मतलब इफ यू वांट टू क्वेरी द मल्टीपल वैल्यूज पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर कॉलम वी कैन यूज द इन ऑपरेटर। एंड लाइक ऑपरेटर इसलिए यूज होता है कि जैसे तुमको कोई पर्टिकुलर पैटर्न फाइंड करना है ऑन द और पर्टिकुलर कॉलम नेम टेबल नेम कुछ भी उसका फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं। ओके then let's go towards the, this was simple right? Let's take the note of this like operator in order to find the particular pattern। फिर पैटर्न यहाँ पे क्या कुछ भी आता हो मतलब नहीं क्या, कॉलम लेवल पे कर सकते हो, कॉलम लेवल पे कर सकते हो, फिर डेटा इनसाइड द कॉलम भी कर सकते हो, फिर मे बी टेबल लेवल पे भी कर सकते हो। टेबल पे हम क्वेरी करके निकाल सकते हैं कि कौन से टेबल में कौन सा कॉलम है, तो टेबल लेवल पे भी मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। सो दैट इज यूज ऑफ स्पेस लाइक ऑपरेटर। ये बहुत यूज़ होता है, मैं तो डेली यूज़ करता हूँ इसको ये बहुत फेवरेट है मेरा लाइक ऑपरेटर, बिकॉज ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पूरा टेबल कैन करने से अच्छा है कि वो टेबल फाइंड करो, वो डेट वही पर्टिकुलर टेबल फाइंड करो और उसमें से डेटा क्वेरी करो, तो लाइक ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ स्पेशल ऑपरेटर। एंड देन इन एंड नॉट इन एंड ये भी बहुत सही है। मतलब नहीं क्या तुमको मल्टीपल वैल्यू जब क्वेरी करनी है तो वहाँ पे बहुत काम मतलब नहीं क्या बहुत काम में आता है ये इन एंड नॉट इन, क्योंकि या हम तो बाकी तो इक्वल टू करके एक ही वैल्यू पास करेंगे, दो तो वैल्यू कैसे पास करेंगे, 2 3 4 5, कभी कभी ऐसे होता है कि थाउजेंड्स ऑफ शिपमेंट्स हमको पास करने होते हैं, वो डेटा में से निकालने होते हैं कि इतने शिपमेंट का डेटा निकाल के लाओ, तो उसकी वजह से इन एंड नॉट इन बहुत यूजफुल हो जाता है। सो इन एंड नॉट इन का क्या लिखा है मैंने, इट इज़ यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न, सो दैट इज लाइक ऑपरेटर। एंड देन सो लाइक ऑपरेटर के भी 2 3 केसेस है। ओके सो लेट मी टेक दिस फॉर योर रेफरेंस। पर्टिकुलर पैटर्न will apply in every base expression। ओके ये अलाउ करेगा मल्टीपल कॉपी करने के लिए। ओके इसी को रखते हैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स, स्टार्टिंग विथ ये वाला पैटर्न। ओके तो इसके ये यूज केसेस भी दे दिए मैंने, क्वेरी भी दे दी है। ये मैं आज क्लास के बाद यहाँ पे डाल दूंगा ग्रुप पे पूरा ऑपरेटर का। ओके तो ऑपरेटर आप समझ जाओगे, ये पूरा ऑपरेटर का डाल देता हूँ एक्सेल तो आप समझ जाओगे। तो दैट इज फॉर लाइक एंड ओके लाइक हो गया। इन एंड नॉट इन एंड नॉट इन का क्या था कि मल्टीपल वैल्यूज
allow you to get list of values passing through the particular column in a not ओके। यहाँ पे ये वाला भी डाल देता हूँ तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए भी। इन ए नॉट ओके, समझ आ गए। थोड़ा जो लाइक वाला था थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, मतलब है थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन जब यूज़ करोगे ना आपको बहुत मतलब बहुत यूज़फुल लगेगा वो, क्योंकि है ही वो यूज़फुल। और फिर आते हैं लास्ट पार्ट, न्यूमेरिकल ऑपरेटर। न्यूमेरिकल ऑपरेटर सिंपल है एकदम, नहीं क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ करना है तो ज़्यादा तो ये यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ ही लो कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। तो सेलेक्ट सेलेक्ट ये वाले अरिथमेटिक अरिथमेटिक स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर इज बिट सिंपल, इट्स नॉट अ यू नो समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे सपोज इसको क्वांटिटी, हम सपोज इसको ये करना है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, क्वांटिटी को हम बढ़ाना है, 10 टाइम्स करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डेटा, ओके क्वांटिटी क्वांटिटी सर्च कर लेते हैं। ओके क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस प्लस 10 करना है फ्रॉम ऑर्डर डेटा। ओके फ्रॉम ये वाला कर दिया। अगर तुमको ये करना है ये, हाँ तो ऐसे से मतलब क्वांटिटी कॉमा स्टार कर दिया तो ओके ये भी आ जाएगा पूरा। हाँ तो देख लोगे कि यहाँ पे क्वांटिटी वाला एक इसको हम एलियास दिया है तो न्यू क्वांटिटी बोलते हैं इसको। ओके न्यू क्वांटिटी ओके न्यू क्वांटिटी, ऐसे मतलब एक डिराइव्ड वैल्यू कुछ लेके आनी है, वहाँ पे तुम ये यूज़ करोगे तो न्यू क्वांटिटी जो क्वांटिटी प्लस 10। जैसे ऐसे मतलब नहीं क्या, किसी का पगार कैलकुलेट करना है, अप्रेजल हो गया 15% बढ़ गया तो कितना बढ़ाना है, तो 20% बढ़ गया तो कितना बढ़ाना है, तो न्यू न्यू सैलरी कैलकुलेटर मतलब क्या, एच आर जाके हर एक को सपोज बाय डिफ़ॉल्ट सबको 10% अप्रेजल दे दिया तो तुम क्या लगता है वो जाके हर एक का अपडेट करती होगी कि इसका 1 लाख है तो इसका 1,10,000 करो, इसका 2 लाख है तो इसका 2,20,000 करो, ये मैनुअली जाके करती बैठेगी क्या। लेट्स से कि एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस में कितने एम्प्लॉयज़ है उसका हर एक का जाके मैनुअल कैलकुलेट करते बैठेगी तो उसका वो हो जाएगा उसका। फिर ऐसे मतलब ऐसे केसेस में मोस्टली ये तो एक्सेल में भी हो सकता है, लेकिन एसक्यूएल में कैसे कर सकते हैं, दिस इज सिंपल एग्जांपल। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस 10, सबका मतलब 10 से क्वांटिटी यहाँ पे देखोगे न्यू क्वांटिटी कॉमा यहाँ पे ये अलाइन कॉलम लेते हैं क्वांटिटी। ओके सब कंपेयर कर पाओगे। ओके यहाँ पे पहले क्वांटिटी 3 था, इसको कर दिया 13, 1 था इसको कर दिया 11, ये 3 था इसको भी 13 कर दिया, 1 को 11 कर दिया। तो फिर अभी करना है कि अभी करते हैं इसको करते हैं इसको एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन करते हैं। सब्सट्रैक्शन जो भी क्वांटिटी है उसमें से 10 माइनस करो। ओके न्यू क्वांटिटी देखो मेरे को ये तो माइनस में चला गया न्यू क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने निगेटिव वाला यूज कर दिया। तो फिर आ जाता है ओके मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। ओके मल्टीप्ली क्वांटिटी इंटू 10, क्वांटिटी इंटू 10। ओके यहाँ पे ओके इसका 3 था 30 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया, 10 हो गया, मतलब ये ज़्यादा कुछ काम के है नहीं, फिर भी एक बार समझ लो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं और इसका यूज ये होता है।
ओके। और फिर आ जाते हैं इनटू डिवीजन। ओके, इसको डिवाइड करते 3 से, डिवाइड करते 3 से, इसको डिवाइड, या फिर 3 से ही सही है, ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा फिर 10 से। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड ये सिंपल होता है कि 3 को 3 को डिवाइड कर दिया 3 से तो ये आ गया न्यू क्वांटिटी। यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 0.33 आ गया। ये सिंपल 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 ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे डिवीजन भी हो गया। और ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वन है। ओके, ये आ गया। तुम बोलोगे तो ये क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं क्वांटिटी को 2 से, ये क्या कर रहा हूँ, परसेंटाइल कर रहा हूँ इसका, इसको परसेंटाइल बोलते हैं, यू नो ऑलरेडी। तो इसको मैं करूँगा डेट क्वांटिटी मॉडुलस ऑफ टू, बड़े बोले तो मॉडल ऑपरेटर डेटा टाइप्स फ्लोट। ओके, ये फ्लोट है इसलिए नहीं कर रहा है। एंड इंट आर इनकम्पेटिबल इन द मॉडल ऑपरेटर। तो दूसरा कुछ लेते हैं। ओके, किधर गया, किधर गया ऑर्डर डेटा सेलेक्शन ऑफ माउंट डेटा। यहाँ पे क्वांटिटी है ना, फिर मॉडुलस सेल्स करते हैं, सेल्स ऑफ टू। ये इसके अगर तुम देखोगे ना डेटा टाइप्स, ये बोल रहा है कि ये तुम जो फ्लोट वैल्यू है ना उसको इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो। इसकी वजह से मैं समझ नहीं समझ मॉडुलस, एक्चुअली मॉडुलस क्या होता है, जैसे मतलब यहाँ पे क्वांटिटी को, क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी को 3 से डिवाइड कर दिया था। दिस इज़ वेरी सिंपल डिवीजन। बट मॉडुलस में क्या होता है कि सपोज इसको इसको नहीं, क्या 3 से 3 है, 3 को 2 से ये कर देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है ना वो आउटकम आता है। जैसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। दैट इज़ द मॉडुलस आ जाता है। तो इसलिए मॉडुलस यूज़ हो जाता है। ओके, सो मॉडुलस का ये सिंपल यूज केस है। आई एम नॉट एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इसका स्कीमा अलग है, इंट नहीं है कुछ किसी का भी। लेट मी इसका स्कीमा क्या है, कॉलम नेम्स क्या है। सो ऑल आर एन फ्लोट है। अगर कुछ इंटीजर वाला डिफाइन होता ना तो आप कर देते हैं। लेट मी टेक द अनदर टेबल में भी select star from orders orders क्या थे ऑर्डर टेबल नेम्स, समझ में आ रहा है ना। ये वाला तो न्यूमरिक वाला तो मैं बोलूँगा कि नहीं कि कुछ कर लो, लेकिन ये वाला लाइक ऑपरेटर वाला था ना, इन एंड नॉट इन का, ये वाला समझ में आना चाहिए था, बिकॉज दैट इज इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। अब ये ऑर्डर्स में देखते हैं, ऑर्डर्स का डेटा देखते हैं कि इसमें कोई इंट वाला कॉलम है कि नहीं। ऑर्डर्स 1 सारे चला गया क्या। ऑर्डर्स पे चलाया मैंने, इसमें कोई इंट वाला कॉलम है क्या, इंट है, ऑर्डर आईडी इंट है। हाँ, ऑर्डर आईडी इंट है। स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स 1 ऑर्डर ऑर्डर आईडी मॉडुलस ऑफ, या फिर ये सही कर देते हैं ऑर्डर आईडी, इसका मॉडुलो निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ 2 करते हैं और लिखते हैं स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। हाँ, तो यहाँ पे देख लोगे तुम इसका स्टार, इसको ऑर्डर आईडी, यहाँ पे 2 ही ऑर्डर आईडी। जैसे तुम उसको
डिवाइड करोगे ना और रिमाइंडर कुछ बचेगा तो यहाँ पे आ जाता है। सो सिंपल ये है कि जो रिमाइंडर आ जाता है मॉडुलस में आ जाता है, सो दैट इज अभी वैसी वैल्यू नहीं मिल रही है हमको। तो जस्ट समझ लो कि ये मॉडल ऑपरेटर क्या करता है। ओके, जैसे आप, क्योंकि मॉडल ऑपरेटर और ये वाला क्या है, डिवीजन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डिवीजन इज प्लेन डिवीजन और ये परसेंटाइल इज नॉट like division, it is modulo operator, we call it as a modulo operator, and that returns with the remainder from the data. Okay, that should be the all for this arithmetic operator. And we cover logical operator, then comparison operator, and we covered these operators like or, and then special operators like is very important, and then in, not in, these are also covered. These are important one. Okay, between is very important, ये कर लेते हैं। ओके, ये कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है between and not between। तो almost it is covered, तो all the operators are covered। that between एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूज़ हो जाता है, तो कल कल के केस में कर लेते हैं क्योंकि दैट इज़ फ्रेश माइंड से आप कैप्चर कर लोगे। जैसे अपन ने ये वाला कर लिया, लाइक ऑपरेटर के मल्टीपल केसेस थे, तो थोड़ा जैसे पेचीदा है, तो हम ये वाला कल के लेक्चर में कर देते। ओके, और कुछ अलग दूसरा नया टॉपिक भी ट्राई कर देते कल। ओके, मैं ये PDF ये वाला एक्सेल ग्रुप में डाल दूंगा और रिकॉर्डिंग भी बाद में भी डाल दूंगा। तो सी यू इन टुमारो गाइस। किसी को कोई क्वेश्चन है? लास्ट 5 मिनट्स। एनी क्वेश्चन गाइस? Okay, cool. Then see you tomorrow, guys. Okay, do practice, guys. If you don't practice, it doesn't make any sense. Okay, so do practice. Bye.